हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका और आप सभी को राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी अटेंड करना चाहते थे बट अफसोस कर नहीं पाए। बट कोई नहीं, जब इंडिया जाएंगे तो सबसे पहले मैं अयोध्या विज़िट करूँगी एंड देन घर जाऊँगी, ये तो फॉर श्योर है। तो उम्मीद है आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ, कुछ नई लोकेशन दिख रही होगी आपको। आज मैं आई हूँ अपने रशियन फ्रेंड से मिलने। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, रशियंस कैसे होते हैं, उनका नेचर आपके साथ कैसा होता है, वेदर वो रेसिस्ट होते हैं या नहीं। तो बेटर है आप किसी रशियन पर्सन से बात करके ही देख ले। तो मैं कॉन्वर्जेशन करूँगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके क्वेश्चन पिक किए गए हैं और पूछे गए हैं। तो आज मैं अपने रशियन फ्रेंड से आपको मिलाती हूँ और सारे क्वेश्चंस उससे पूछूंगी आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इतने एफर्ट के लिए बस मैं आपको एक ही चीज़ मांग रही हूँ, दैट इज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आप थोड़ा बहुत तो प्यार दे ही सकते हो गाइस। कैन यू गाइस गिव मी इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स? Okay. My टेल name मी is योर। Liliana. ओके, एंड योर? मेरा नाम गुलनारा है. Okay, that was so sweet of you. Okay, I have some question for you guys. Tell us something about Ufa. Okay, it's my city. I born here, and my city is big because here many people, 1 million. So, more? Population? More than 1 million. Yeah, and my English not so good. Thank you. Sorry. It's okay. Okay, and we have winter now. We have many some different places. Interesting, I think. Okay, and you have something to say about Ufa? I would say that we have so many different nationalities here, just Russians, Ukrainians, I don't know, Tatar, Bashkir people, we are all live together here in Ufa. Okay. Okay, my second question is, why don't Russian people usually seems to smile? For me, I would say it's a very difficult question. I don't know how to describe, and I would give you Nara the opportunity to answer that question. Okay. Oh, yeah. I think Russians haven't smiled because we have smile, but inside, inside we gentle. I think, and maybe we not like a fake smile. We smile only when we have close friends. No, when we have a close friendship, and we really smile, and we have some good события, event. We have a smile. Okay. I think so. Okay. What do you think about India? You have went to India twice. Twice, not thrice. Yeah. So what do you think about India in general? It's very interesting country because Russian is different, and I think every Russian can may not it's must go to India for learning some good good smile Okay. and some uh, variables. I like India because I like sincere people, and I think India like this. Okay. How do you think about Indian people? Like culture of India, do you like it? I have never been in India. I would like to visit one day this country Okay. and to try Indian masala tea. I would like to do. How is the Indian people? Like you have seen them in local buses or something? I saw them. I had short conversations with them. I would say, on my point of view, we don't have bad or good nationalities. We don't have bad or good people. We have just bad behavior. Yeah. I think we are all, in general, we have one heart. It has the same construction as my heart, and your heart is the same. I have now the opportunity to judge you. Okay, we will happy to have you in India. I would love. Okay. Okay, what do you guys think about Indian student? Like UFA have lots of Indians. Okay. Every time students from India open for communication,
it's very smiley people, and I think they are so try to learn Russian language. Русский язык is very difficult language, and I know many students who 5 years here, and they speak in Russian good. Yeah. Yeah. And what do you? On my point of view, Indian students, I would say they are superheroes because to leave their country, to come here, just to Russia, to the place where it's very cold at winter time. It's really very hard to learn the new language, to try to speak with the locals in Russian. I can understand that not so many locals they able to speak with them in English, and how it's difficult sometimes can be. And for me, they're all like superheroes that they came here to study. That's so sweet of you. Question, like the student who are coming here or who are sitting in India and watching you guys, what is your message for them? Welcome. Is Russia open to call Indians and give them hospitality? Yeah, I think it's very fun when different people can live together. It's our Students in the bus, they're very polite. I would say they're extremely polite. And in the shop, I'm trying to offer them any help with the translation, because I can understand that when you're living abroad, you may have so many different difficulties. For example, if you want to buy a toothbrush or toothpaste or just everything, and I'm trying to help them. I'm trying to support them. That's so sweet of you, and thank you so much for coming. So guys, इस वीडियो को ज़्यादा मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एग्जैजरेट नहीं किया. जितनी चीज़ें नेचुरल रह सकती थी मैंने रखने की कोशिश की. अगर उससे ज़्यादा मैं बढ़ने की कोशिश करती तो यार कुछ नेचुरल नहीं आता, सब कुछ फोर्स्ड लगता. इसलिए ज़्यादा ये नहीं हुआ है. उससे पहले भी हमारा कॉन्वर्जेसन हुई थी, तो उस कॉन्वर्जेसन में मुझे कुछ न्यू पॉइंट्स जानने को मिले, तो वही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि वही पॉइंट्स आपके डाउट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगा. तो जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो मुझे पता चला लाइक 8:45 को यहाँ पे से बस जब जाती है तब बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है हर जगह की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वर्किंग आवर होता है सबका. हमारा भी यूनिवर्सिटी जाने का टाइम्स होता है, और लोकल है जो यहाँ के, उनका भी जॉब पे जाने का टाइम होता है. तो ऐसा क्यों है, मैंने जानने की कोशिश करी जब उनसे, तो मुझे ये पता चला कि 3 साल पहले तक यहाँ पे अभी जिस अमाउंट में बस जा रही है उससे ट्रिपल अमाउंट में बसेस जाती थी. बट ड्यू टू ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन थोड़े अमाउंट में कम कर दी है. बट ऐसा नहीं है, हर 14 मिनट में हर बस स्टॉप पे बस आ जाती है, चाहे वो कोई भी बस हो. तो कोई इसमें इशू नहीं है. और बात अगर एनवायरनमेंट की हो तो सबको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने चाहिए. और सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि बहुत से बार मतलब इंडिया में मुझे लोग जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है अपने से बोलता है कि यहाँ पे रेसिज्म तो नहीं है या कुछ नहीं है. तो लाइक लिलियाना सेड, वीडियो में भी आपने सुन लिया होगा उस बारे में, कि यार देखो हर एज ग्रुप के पर्सन्स होते हैं और उनका माइंडसेट होता है एक बना हुआ. तो कुछ लोग होते हैं कि उसी माइंडसेट में रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहते हैं, या कुछ लोग उससे आगे निकलना चाहते हैं. जो रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहते हैं वो तो ऑफकोर्स कैसा ट्रीट करेंगे आपको पता है, और हर जगह ये चीज़ होती है. हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पेक्टफुल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लाइक जिनमें एक्सेप्टेंस नहीं होता, ये बोला जाए तो बेटर होगा. और इंडिया में भी ऐसे बहुत से केसेस हैं. तो हम टोटली ऐसे एक इंसान से 100 इंसान को जज नहीं किया जा सकता. तो ये चीज़ है. और जो तीसरी चीज़ है कि पिछले साल भी मैंने सुनी थी, इस साल भी सुनने में आ रहा है, पिछले साल भी मैं क्लियर करने आई थी, अभी मैं कर रही हूँ, कि बहुत से लोग ना पता नहीं क्यों बट रिलीजन को आड़े लाना हर चीज़ में ज़रूरी वो लोग समझते हैं.
तो ऐसा ही यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री है या कुछ है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यहाँ पे तो इवन ऐसा भी है कि एक रिलीजन की रिलीजियस बिलीफ की वजह से दूसरे को दिक्कत ना हो, इस वजह से यहाँ ये सब चीज़ें रिलीजन बहुत सप्रेस्ड रहता है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वर्शिप करना चाहते हो आप खुद करो, बट दूसरे को दिक्कत मत दो, यहाँ पे ये रूल है। और अगर आपने इस रूल का उल्लंघन किया किसी भी वजह से, तो लाइक इस पे स्पेसिफिक मेजर्स लिए जाते हैं लीगली। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ कोई फैलाए ना ही तो ही बेटर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो पे अगर आप 100 लाइक कर देते हो तो हम लिलियाना या तो गुलनारा का हाउस विजिट करेंगे इन जो अपकमिंग वीडियोज़ रहेंगे उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।